हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज अ थ्योरी concerned with the chemical bond formation that we call as valence bond theory. This theory is of immense importance. It helps us in predicting, explaining the physical properties, the chemical properties, the structures taken up by the covalent compounds. All these things can be explained if we have good knowledge of valence bond theory. We have actually two such theories. One is valence bond theory and another one is molecular orbital theory. Both the theories, they have high applicability in chemistry, and being a good chemistry student, we must have a good knowledge of both these theories. In the previous lecture, we were talking about the Vesper theory or valence shell electron pair repulsion theory. That theory has also its applicability in explaining, in predicting the geometries, the shapes of the molecules, but it has a confined scope. Its scope is just in the prediction and explanation of the geometries. Then it gives us no idea about the properties of the covalent molecules, about the energetics that is involved in the covalent bond formation, why covalent compounds, why compound formation takes place, what leads to the stability of the resulting compounds when the constituent atoms combine together. It has nothing to say about that. And this theory, valence bond theory, it gives us a good idea about the energetics that is involved in the covalent bond formation, about the structures that are taken up by the chemical compounds once they are formed. This theory was proposed by two scientists, Hitler and London, in 1927, and in 60s this theory was extended by many other scientists. The prime work was done by Pauling and Slater. So in their honor, this theory has been also named as Hitler-London Pauling-Slater theory. It is also called as Hitler-London Pauling-Slater theory. This theory, it is a quantum mechanical approach, means it is based on quantum mechanics, where we talk about the probability. We do not talk about the orbitals there, shells there. We talk about the probability of finding the electron around the nucleus, that we call as atomic orbitals. So ये theory का जो main focus है, it is about the atomic orbitals, and this theory gives an explanation to the covalent bond formation. So first point you need to remember, what is the applicability of this theory? It gives an explanation to covalent bond formation. How covalent bonds are formed, what leads to the stability of the covalent compounds, how stable compounds are formed once the elements combine with each other. And the focus of this theory, the basis of this theory is on the atomic orbitals. It says that whenever the covalent compounds are formed, the atomic orbitals penetrate, they overlap with each other, they undergo overlap. That overlap, how do we define the overlap? Overlap is simply penetration or mixing up of the atomic orbitals. We know that orbitals are the different orientations taken up by the electrons around the nucleus. For example, s orbitals, they are spherically symmetrical, means the probability of finding the electron around the nucleus in an s orbital is same everywhere. Therefore, they are called as spherically symmetrical orbitals. Likewise, we have p orbitals, which in p subshell, if an electron is present, it may take up three orientations. It may be moving around the nucleus along one axis, for example, x-axis, along y-axis, or along z-axis. There are three orientations which may be taken up by an electron present in the p subshell, that we call as three orbitals are present. So it can be along it can be along x-axis called px orbital, it can be along y-axis called py orbital. The electron can be moving around the nucleus along z-axis, then that type of orbital will be called as pz orbital. These are simply the different orientations taken up by the electron around the nucleus. And this theory, it lays its emphasis on the atomic orbitals. It says that in the formation of a covalent compound, in the formation of a covalent bond, the atomic orbitals overlap with each other. So the basic idea of this theory is covalent bonds are formed by overlap of atomic orbitals. When atomic orbitals overlap with each other, and how do we define overlap? Overlap hota kya hai? It is penetration. Penetration of atomic orbitals into each other.
जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे में पेनिट्रेट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, मींस ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे में पेनिट्रेट हो गए, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, देन दैट वी कॉल एज ओवरलैप, उसको हम बोलते हैं ओवरलैप। एंड दिस थ्योरी सेज दैट whenever a covalent bond is formed, the atomic orbitals of the combining atoms they overlap with each other। जो combining orbitals atoms के orbitals होते हैं वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, intermix होते हैं, that leads to the formation of a covalent bond। उसकी वजह से covalent bond बन जाता है। For example, we have an atom A, हमारे पास एक atom A है और दूसरा atom B है। Then, for the formation of a covalent bond बनाने के लिए these two atoms they must approach each other with their orbitals heading towards each other। इनके orbitals जो है एक दूसरे की डायरेक्शन में होने चाहिए और एक दूसरे को ये अप्रोच करने चाहिए, then only the covalent bond will be formed। For example, say this is the orbital of A and this is the orbital of, for example, B। In order to overlap, in order to form a covalent bond, this atom it must approach this atom, and when these two atoms they approach each other, their atomic orbitals overlap। इनके atomic orbitals जो है वो एक दूसरे के साथ overlap कर जाते हैं, and this is the region of overlap। ये होता है region of overlap, and in this region of overlap is actually called as covalent bond। इसी region of overlap को हम क्या बोलते हैं? It is covalent bond। And this electron density which is present in between these two nuclei, it is responsible for holding these two nuclei close to each other। यही electron density जो ये share करते हैं, यही orbitals जो overlap करते हैं, they are responsible for holding these two combining atoms together in a covalent bond। So first point you need to remember is they are formed as a result, covalent bonds are formed as a result of overlap of atomic orbitals। For the formation of a covalent bond, second point, for the formation of a covalent bond, the combining atoms must come close to each other। ये दूर से overlap नहीं कर सकते हैं, इनको नजदीक आना है और नजदीक से इनके orbitals जो हैं एक दूसरे में penetrate हो सकते हैं और नजदीक आने के बाद ही वो overlap करके covalent bond बना सकते हैं। Then number third point that you need to remember in this Valence bond theory, the fundamental postulate, basic postulate of this theory is that it says that when two atoms approach each other, जब दो atoms एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, then two forces come into existence। दो forces जो है वजूद में आ जाते हैं। When two atoms approach each other, two forces come into existence। One is called as repulsive force, एक force को हम बोलते हैं repulsive force, and second one is called as attractive force। Attractive force, two forces come into existence when atoms come close to each other। एक को हम बोलते हैं repulsive forces, दूसरे को हम बोलते हैं attractive forces। Repulsive forces we know that these are those forces which try to take the constituents apart from each other। ये constituents को, ये atoms को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। कौन से forces? Repulsive forces। और attractive forces का काम क्या होगा? They will try to tie up the constituents, they will try to bring the constituents close to each other। इन repulsive forces के मुतालिक आपको एक बात याद रखनी है, they are short range forces। ये होते हैं short range forces। short range forces मतलब क्या होता है short range forces का? They are operative at small distances। They are operative at small distances। ये ऑपरेट करते हैं तभी जब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स दूर होंगे तो उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट नहीं करते हैं, और अगर वो ऑपरेट करेंगे भी तो उन रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव से फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 एटम्स। यहाँ पे हमारे पास 5 एटम्स है, एक दूसरे के नजदीक है। Then these two atoms they will be attracting each other and they will also be repelling each other। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। अब इस और इस वाले एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, बट फोर्स ऑफ रिपल्शन नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बहुत कम होगा। इसके और इस फोर्थ एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, बट फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, और इसके और इसके दरमियान तो जीरो ही होगा। मींस फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इट ऑपरेट्स फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस। ये यहाँ से यहाँ तक ही ऑपरेट कर सकता है, इससे आगे ऑपरेट नहीं कर सकता है। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दे आर कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दे आर कंपैरेटिवली लॉन्ग रेंज फोर्सेस मींस दे कैन ऑपरेट अप टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। ये लॉन्गर डिस्टेंसेस तक ऑपरेट कर सकते हैं, बट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन ऑपरेट ओनली अप टू शॉर्टर डिस्टेंसेस। नंबर सेकंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस रिपल्सिव फोर्सेस आर दे
they bring instability. They bring instability to the system. ये सिस्टम में अनस्टेबिलिटी लाते हैं और दे इंक्रीज द एनर्जी. दे इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देते हैं. मीन्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबिलिटी. ये इस सिस्टम को स्टेबल नहीं होने देते हैं. ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाते हैं. ये सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देते हैं. दे ट्राई टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और अट्रैक्टिव फोर्सेस का काम क्या होता है? दे ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द सिस्टम. ये सिस्टम में स्टेबिलिटी लाते हैं. दे ब्रिंग स्टेबिलिटी to the system. They bring stability to the system, or they decrease the energy. They decrease the energy. Now, दो forces operative हैं when two atoms approach each other. One is repulsive force, one is attractive forces. They are short range, they are long range. Means they operate for small distances only. They operate for comparatively longer distances. They are responsible for instability of the resulting system. They are responsible for stability of the resulting system. Now, which of these forces will be higher in magnitude? It will decide whether the covalent bond will be formed or not. अगर जो है attractive forces higher magnitude के होंगे, then the repulsive forces, then at that time the covalent bond of higher strength will be formed. और अगर repulsive forces का magnitude बढ़ जाएगा तो atoms fly apart होंगे. They will try to go. They will try to fly apart from each other, and the bond that may be holding the constituents together, this bond, this force of attraction, it will be broken down. So if we have, for example, we can show these forces that are operating in the formation of a covalent bond, or the forces that can come into being once the two atoms they come close to each other. Say for example, this is one atom, this is another atom. This is, say for example, atom A, this is atom B, this is the nucleus of atom A, for example Na, this is nucleus of atom B, for example Nb. This atom B, it has one electron. Let's name this electron, it is Eb electron. This atom, it has one electron. Let's name this electron, it is Ea electron. Now, जब हम इन दो एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, या जब ये दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, what happens? Two forces come into existence: attractive force and repulsive forces. अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में होता है? अट्रैक्टिव फोर्स इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा. Look here, nucleus, it is positively charged. It will hold its own electron. ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा because of positive negative attraction. Besides this, जब ये इसके फील्ड में आ जाएगा, it is sphere of influence में आ जाएगा, this nucleus not only holds its own electron, it will also attract the electron cloud or the electron of the neighboring atom. ये इस neighboring atom के electron को भी attract करेगा. Simultaneously, this electron, जो इस वाले A का electron है, it will be attracted towards the nucleus of B atom. So the attractive forces that are operating between A and B are attraction between the nucleus of A and electron of B, attraction between the nucleus of B and electron of A. So these will be attractive forces. Attractive forces. कौन कौन सा attractive force है? It is EA and B force. The force between this electron and this nucleus. Likewise, another force which is attractive in nature, it will be EB and A force. These are the two forces that are attractive in nature. Besides this, there are also repulsive forces operating. यहाँ पे repulsive forces भी operate हो रहे हैं. Repulsive forces are also operating. Repulsion किस किस के बीच है? इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में repulsion हो सकती है अगर हम इनको नजदीक लाएंगे. This is negatively charged, this is negatively charged. They will try to repel each other. This is positively charged, this is positively charged. Nucleus and nucleus, they will also try to repel each other. So electron और electron के बीच में repulsion हो सकती है, nucleus और nucleus के बीच में repulsion होती है. In totality कितने forces हैं? 4 forces are there. 2 of them are attractive and this one is repulsive, this one is repulsive. So repulsive force किस किस के बीच में आ सकता है? It is between EA and EB, it is between NA and NB. These are the forces of repulsion. Now मैंने क्या कहा? That forces of repulsion, repulsive forces are operative only at small distances, shorter distances. जब ये atoms एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे तो repulsive forces का magnitude constantly, continuously बढ़ जाएगा. But attractive forces at considerable distance भी अगर atoms होंगे, the attractive forces still exist. The attractive forces still exist. For example, this is our atom A.
दिस इज से फॉर एग्जांपल आवर एटम बी, यहाँ पे हमारा एटम ए है और यहाँ पे हमारा एटम बी है। when these atoms are that at this distance, जब ये एटम्स इस डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे से इतने दूर होते हैं, the force of attraction between them or the force of repulsion between them is negligibly small, it is nearly equal to zero। ये किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। मीन्स neither this is attracting this nor this is attracting this, they have no interaction, neither positive interaction neither nor the negative interaction। But if these atoms they are brought close to each other, अगर हम इन दो एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, say for example they are held with respect to each other at this distance, इस डिस्टेंस पर हम इन दोनों को जो है होल्ड करेंगे। As we bring these atoms close to each other, the force of attraction between these atoms gets increased। इनके दरमियान जो force of attraction होता है, it tends to increase, it begins to increase। और जो force of attraction जब increase होगा, what will happen to the energy of the system? The energy of the system will begin to fall down। इनकी एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की, इन दो एटम्स की एनर्जी जो है, it will constantly fall down, the energy will get decreased। For example, this is our energy level diagram। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा दूसरा एटम है, हियर वी हैव द सेकंड एटम। देन इनके दरमियान यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है और इन दो एटम्स की एनर्जी फॉर एग्जांपल इस वैल्यू पे है, दिस इज देयर एनर्जी। नाउ वी आर ब्रिंगिंग देम क्लोज टू ईच अदर, जो ही हमने इनको नजदीक लाया तो ये एटम्स फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस पर पहुंच गई, तो इनकी एनर्जी जो है इट फॉल्स डाउन, इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। फिर से हमने इनको नजदीक लाया तो इनकी एनर्जी और ज्यादा डिक्रीज हो गई, देयर एनर्जी इज गेटिंग डिक्रीज्ड। सो बिकॉज लॉन्ग रेंज पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे सिर्फ कौन सा फोर्स ऑपरेटिव है? अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स ही ऑपरेटिव है। यहां पर जब हमने इनको लाया, द अट्रैक्टिव फोर्स इज स्टिल ऑपरेटिव, इट इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, बट साइमल्टेनियसली अनदर फोर्स कम्स इनटू बीइंग एंड दैट विल बी द रिपल्सिव फोर्स। यहां पे इस डिस्टेंस पे और एक फोर्स वजूद में आ जाएगा, दैट विल बी द रिपल्सिव फोर्स, एंड दिस रिपल्सिव फोर्स विल ट्राई टू टेक द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो यहां तक सिर्फ अट्रैक्शंस थी, रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबली स्मॉल था, बट यहाँ पे रिपल्शंस भी वजूद में आ गई और इन रिपल्शंस की वजह से ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम की एनर्जी, अब अगर हम इससे नजदीक इनको लाने की कोशिश करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो इस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इस सिस्टम की एनर्जी अब इंक्रीज होगी। मींस इस डिस्टेंस पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, अगर एटम्स होंगे, द सिस्टम विल हैव एनर्जी ओवर हियर, इस सिस्टम की एनर्जी यहाँ पे पहुंच जाएगी। सो व्हाट इज हैपनिंग टू द एनर्जी? इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द एनर्जी, potential energy or simply the energy of the system that is formed by the combination of two atoms, what will happen to the energy once the internuclear or interatomic distance is decreased down? For example, ये बड़ा important graph एक हम पढ़ने जा रहे हैं, this is variation of energy, this is for example our energy, what we call as potential energy, it is increasing in this direction। Then say for example this is our arbitrary zero energy, ये हमारी जीरो एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या बता रहे हैं? आवर सिस्टम इज हियर, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ए और ये हमारा दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है बी, दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी। इनकी एनर्जी कितनी है? इट इज फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट when there is no force of attraction between the two, इनके दरमियान कोई force of attraction नहीं होता है। Now what are we doing? We are bringing these two atoms close to each other, इन दो atoms को हमने नजदीक लाया। For example, they reached this distance, ये इस distance पर आ गए ये दो atoms। Now what is happening? This is our atom A, this is our atom B। ये दो एटम्स जब इस डिस्टेंस पे आ गए तो इन दो एटम्स ने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, एंड दैट इंटरेक्शन विल बी अट्रैक्शन। ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, बिकॉज रिपल्शंस डू नॉट ऑपरेट एट लॉन्गर डिस्टेंसेस, ओनली अट्रैक्शंस ऑपरेट एट लॉन्गर डिस्टेंसेस। सो व्हाट इज हैपनिंग? जब ये इस डिस्टेंस पर आएंगे, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट इज फॉलिंग डाउन। यहाँ पे एनर्जी थी जब ये कंबाइन बिल्कुल एक दूसरे से दूर थे, जब हम इनको थोड़ा सा नीचे लाएंगे या थोड़ा सा नजदीक लाएंगे, इनकी एनर्जी जो है घट जाती है, इट देयर एनर्जी रीचेस दिस स्टेज, यहाँ पे पहुंच जाती है। फिर से हम इनको नजदीक लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इस डिस्टेंस पर हमने पहुंचा दिया, इनको इस डिस्टेंस पर पहुंचा दिया, दिस इज आवर एटम ए, दिस आवर एटम बी। फॉर एग्जाम्पल इनकी एनर्जी इस स्टेज पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई इनकी एनर्जी, मीन्स द एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। दिस यहाँ से ऊपर, दिस ऑर्बिटरी जीरो, यहाँ से ऊपर है पॉजिटिव एनर्जी
और यहाँ से नेगेटिव है, नीचे जो है इट इज नेगेटिव एनर्जी, मीन एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ से एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, इट इज मोर देन जीरो। यहाँ से एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इट इज लेस देन जीरो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने हमारा सिस्टम पहुंच गया और इसकी एनर्जी इतनी कम हो गई। कैसे कम हो गई? व्हेन वी ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, व्हेन वी ब्रिंग द एटम्स क्लोज टू ईच अदर। अब जितना जितना हम इनको नजदीक ला रहे हैं, इसकी एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है। द एनर्जी इज गेटिंग कॉन्स्टेंटली डिक्रीज 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 टिल अ स्टेज इज रीच्ड। एक स्टेज आ जाता है जहां पे ए एटम और बी एटम के दरमियान अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। एट दिस स्टेज द अट्रैक्शन बिटवीन ए एटम एंड बी एटम दे आर हाईएस्ट, और यहाँ पे सिस्टम जो होता है इट इज हाईली स्टेबल, और यहाँ पे जो है सिस्टम के पास सबसे कम एनर्जी होती है। इसने कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज की और इस स्टेज पे इसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। अब अगर हम इन एटम्स को और नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा ए एटम है, इनके दरमियान फॉर एग्जांपल इतनी डिस्टेंस है इनके न्यूक्लियस के दरमियान, अब हमने इनको इससे नजदीक लाने की कोशिश की। अब अट्रैक्शंस के बजाय रिपल्शंस वजूद में आ जाती हैं और रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और इस सिस्टम की एनर्जी अगर हमने डिस्टेंस इनके बीच इससे कम कर दी तो इस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होने के बजाय अब इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और जब हम इसको कंटिन्यूअसली नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं तो एनर्जी इसकी इंक्रीज होकर, पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज होकर वापस पॉजिटिव पर पहुंच जाएगी। सो एट दिस स्टेज, ये स्टेज पे, इस स्टेज पे व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इज दिस मच, द सिस्टम हैज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी। इफ वी ट्राई to bring the constituents further close to each other, energy gets increased. If we try to take the constituents apart from each other, energy gets increased. यहाँ से constituents को दूर लेंगे तो energy increase होगी, यहाँ से constituents को नजदीक लाएंगे तो energy increase होगी। This distance we call as the distance between the two atoms at which the system has least possible energy. इसको हम बोलते हैं critical distance, या इसी को हम बोलते हैं bond length. This is called as bond length. So bond length क्या होती है? It is the average distance between the centers of the two nuclei. The average distance between the centers of the two nuclei which are held together by a covalent bond. At this distance, the system has least energy, and if we try to decrease the distance, its energy gets increased. If we try to increase the distance, its energy gets increased. So this stage, at this stage, when the system has least possible value of energy, the distance between the center of the atoms at this stage, it will be called as bond length. इसी को हम बोलते हैं bond length. We can represent it by a dotted line over here. यहाँ पे हम इसको by a dotted line रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान इतनी डिस्टेंस थी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान इतनी डिस्टेंस थी, एंड दिस डिस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड एज DA. DA we call as bond length. We write the symbol DA for bond length. So what are we doing? See, this is for example R. R means internuclear distance, symbol for internuclear distance. We are decreasing this internuclear distance. The energy is getting continuously decreased. हम internuclear distance, एटम्स के दरमियान की डिस्टेंस, मसाफत को कम कर रहे हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के कम होने की वजह से अट्रैक्शंस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। सिस्टम की एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज 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 यहाँ तक। यहाँ पे एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पे अट्रैक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट ए और कॉन्स्टिट्यूएंट बी के दरमियान सबसे ज्यादा होती है, और अगर हम इससे नजदीक इनको लाने की कोशिश करेंगे, यानी आर इससे कम करने की कोशिश करेंगे, तो इनकी एनर्जी अब्रप्टली राइज होती है। सो दिस डिस्टेंस एट विच द सिस्टम हैज लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड? कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड? द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम इन्फिनिटी. दिस क्लोजिंग approaching each other results in decrease in the energy of the system, and at a particular stage, at a particular internuclear or interatomic distance, the system has least possible energy and the system tries to remain at that stage. ये system उसी state में रहना चाहता है, means ये constituents उसी
डिस्टेंस पे रहते हैं, दैट डिस्टेंस वी कॉल एज बॉन्ड लेंथ। और यही डिस्टेंस जो है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट जो होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल। सो व्हेन वी टॉक ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जेटिक्स, जब हम एनर्जेटिक्स को कंसिडरेशन में लेके बात करते हैं about how covalent bonds are formed in terms of the stability gain, we say that stability is gained once a covalent bond is formed because at some critical distance the force of attraction between the combining atoms it is highest and force of repulsion between the combining atoms is considerably negligibly small। तो यहाँ पे ये एटम जो होता है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। यहाँ पे ये constituents जो होते हैं, they are continuously vibrating, they are not static। A covalent bond, any type of bond, it is never static, it is like a spring, like a string, they are continuously vibrating। ये दूर जाते हैं तो रिपल्शन जो है, अट्रैक्शन कम होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, तो फिर से वापस आते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्शन जो है कम होती है, रिपल्शन बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये फिर से आ जाते हैं। मीन दे आर ए सॉर्ट ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की तरह ये जो है कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं अबाउट अ मीन पोजीशन, एंड दैट मीन डिस्टेंस वी कॉल एज बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ is the distance, the critical distance at which the force of attraction between the combining atoms is highest, energy is least, and forces of repulsion are also negligibly small। Beyond this critical distance, this bond length, if we try to bring the constituents more close to each other, the system becomes unstable, highly energetic, and constituents try to fly apart from each other। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी अगर हम इसकी बात करेंगे, देन बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज the amount of energy that needs to be supplied to these two atoms, that needs to be supplied to this system so that these two constituents fly apart from each other। क्योंकि बॉन्ड बनते समय ये एनर्जी रिलीज हो रही है, अब अगर हमें इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वापस भगाना है, वापस एक दूसरे से अलग करना है, तो हमें ये जितनी ये एनर्जी रिलीज हुई है, इतनी एनर्जी हमें वापस यहाँ से सप्लाई करनी है, सो दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्लाई फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट वी कॉल एज बॉन्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वंस अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट वी ऑल्सो कॉल एज दिस bond energy। This is called as energy level diagram for chemical bond formation। It is very much important, highly important, क्योंकि ये energy level diagram को इस्तेमाल करके predict हम कर सकते हैं that why and how the formation of a covalent bond leads to the stability of the resulting molecule। So students, हमने क्या पढ़ा अभी तक? एनर्जेटिक्स, दैट इज इन्वॉल्व इन ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, कैसे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है वंस दिस सिस्टम अंडरगोज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जो प्रीवियस थ्योरीज का वो ड्रॉबैक था, that it could not explain the stability of the resulting chemical compound or covalent molecule that is formed। This drawback is addressed by this theory by showing us through the potential energy diagram that once the internuclear distance is decreased, the energy gets decreased and system becomes stable at a certain particular distance between the two constituent atoms that we call as bond length। Now, our immediate focus will be on the basic idea of this theory, that is the overlapping। How actually overlapping takes place? Overlapping होती क्या है? It is penetration of the atomic orbitals। Penetration of atomic orbitals। जब atomic orbitals एक दूसरे में penetrate होते हैं, that we call as overlap। और एक covalent bond बनाने के लिए, एक stable bond बनाने के लिए, एक strong bond बनाने के लिए ये ओवरलैप क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ बेटर ओवरलैप, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, इट शुड बी the extent of overlap should be high। So number first point you need to remember about the overlapping of the atomic orbitals is the strength, the extent of overlap, the extent of overlap decides the strength of the bond formed,
कितना ओवरलैप होगा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे में पेनिट्रेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना रिजल्टिंग बॉन्ड स्टेबल बनेगा, उतनी एनर्जी सिस्टम की कम होगी। जितना ओवरलैप वीक होगा उतना रिजल्टिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होगी, उतना उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो मोर द ओवरलैप मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। और कौन से ऑर्बिटल्स अच्छा ओवरलैप करते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से अच्छे से ओवरलैप करते हैं जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, जिनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होती है, विच हैव लेस एनर्जी डिफरेंस और विच हैव कंपेरेबल एनर्जी। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट वन इज दे मस्ट हैव मैचिंग सिमेट्री, इनकी सिमेट्री भी मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एस ओवरलैप विल बी बेटर ओवरलैप कंपेयर टू sp ओवरलैप कंपेयर टू sd ओवरलैप। अगर s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप होता है, इट विल बी कंपैरेटिवली less stronger overlap than the ss overlap, than the sp overlap. Likewise pp overlap, it will be comparatively more stronger than sp overlap, than ss overlap. So we say that जितना extent of overlap ज्यादा होगा उतना bond stable बन जाता है। extent of overlap ये किस पे डिपेंड करता है? extent of overlap दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट थिंग, atomic orbitals must have matching symmetry, इनकी सिमेट्री, इनकी डायरेक्शन मैचिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल, अभी हम पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा विद द px orbital which is lying on the internuclear axis, px orbital और s orbital जब ओवरलैप करते हैं, it is better overlap than s orbital overlapping with py orbital और s orbital overlapping with pz orbital। वहां पे सिमेट्री मैच नहीं करते हैं, therefore वो वाला ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। s और px के दरमियान ओवरलैप पॉसिबल है। हम अभी ये डिस्कस करेंगे सिमेट्री क्या होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे मस्ट हैव मैचिंग सिमेट्री, नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड थिंग, दूसरी चीज ओवरलैपिंग के लिए मस्ट क्या है? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल है और दूसरे साइड से भी 1s ऑर्बिटल है तो ये दो ऑर्बिटल्स अच्छे से ओवरलैप कर सकते हैं कंपेयर टू अगर एक साइड से 1s ऑर्बिटल है, दूसरी साइड से 3s ऑर्बिटल है। इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, दे डू नॉट हैव कंपेरेबल एनर्जी, इन दो की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, देयरफॉर द ओवरलैप दैट विल बी हियर इट विल बी कंपैरेटिवली less stronger than the overlap up to lesser extent than the overlap that will be existing between 1s and 1s orbital. So two must conditions for better overlap to take place is matching symmetry and comparable energy of the combining atomic orbitals. Number second thing that you need to remember in this overlapping is only orbitals with unpaired electrons overlap, तो वीबीटी ने क्या कहा? वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल, अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ओवरलैप करेगा, अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है इट विल नॉट ओवरलैप। सो ऑर्बिटल्स ओवरलैप ओनली इफ दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस ऑर्बिटल ओवरलैप इज दैट, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इन दिस ऑर्बिटल ओवरलैप, when these atomic orbitals overlap with each other, जब atomic orbitals overlap करते हैं, the electron density lies in between the two nuclei in such a way, ये बड़ा important जो है postulate है of the valence bond theory, the electron density lies in between two nuclei in such a way that both the nuclei are held together। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियाई के बीच में होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से अरेंज हो जाती है कि ये दोनों न्यूक्लियाई को पकड़ के रखती हैं। ये हम अभी देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई को साइमल्टेनियसली होल्ड करती है, साइमल्टेनियसली बोथ द न्यूक्लियाई आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सो
जो ओवरलैपिंग को हमने डिफाइन कैसे किया, इट इज पेनिट्रेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड ओवरलैपिंग के लिए मस्ट क्या है, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव मैचिंग सिमेट्री, दे मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी, so that the extent of overlap will be higher, so that the strength of the resulting bond will be higher. नंबर सेकंड थिंग, वही ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर थर्ड थिंग, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इट गेट्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट इट होल्ड्स बोथ द न्यूक्लियर टुगेदर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों न्यूक्लियर को जो है इस कोवेलेंट बॉन्ड में पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। नाउ दिस ओवरलैप, जो ओवरलैपिंग है, इट्स ऑफ टू टाइप्स। ओवरलैपिंग या एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, इस ओवरलैपिंग को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैप, एक को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप और दूसरे को हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप, वन इज कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैप, another is called sideways overlap, or it is also called as parallel overlap. इसको दूसरा नाम देते हैं हम, इट इज पैरेलल ओवरलैप। इसको दूसरा नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप। इट इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, एक्सियल ओवरलैप एंड साइडवेज ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच करेंगे एक दूसरे को अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन दैट टाइप ऑफ ओवरलैप विल बी कॉल्ड एज एक्सियल ओवरलैप। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेंगे, डायरेक्टली हम पी ऑर्बिटल से शुरू करेंगे, बिकॉज पी ऑर्बिटल्स की ही डायरेक्शन होती है। एस ऑर्बिटल्स दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, वो हम अभी देखेंगे, वो हर सूरत में सिर्फ एक्सियल ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये फॉर एग्जांपल दूसरा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है, दिस इज आवर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। अब ये ऑर्बिटल, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस ऑर्बिटल की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ दिस ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को along the line joining the centers of these two atoms, इसको हम बोलते हैं along the line, इसी लाइन के थ्रू, ये जो लाइन इनके सेंटर्स के बीच में पास होती है, जब ये इसी लाइन के थ्रू एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो उस वाले अप्रोच को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, या उसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। उसको हम बोलते हैं सीधे एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं along the internuclear axis, we call it as axial overlap। यहाँ पे हम इसी तरह से डायरेक्टली एग्जांपल लेंगे, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल पी जेड ऑर्बिटल है एक, ये दूसरा हमारे पास पी जेड ऑर्बिटल है, दिस इज सेकंड पी जेड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज आवर न्यूक्लियस, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ दिस ऑर्बिटल, दिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ दिस ऑर्बिटल। और जब ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, क्या ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं, मींस हेड ऑन ये अप्रोच कर रहे हैं? नो, दे आर अप्रोचिंग साइडवेज, मींस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये अप्रोच कर रहे हैं बट परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन दिस टाइप ऑफ अप्रोच विल बी कॉल्ड एज साइडवेज ओवरलैप और पैरेलल ओवरलैप। एंड हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप का किसको बोलते हैं? जहां पे ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट वी कॉल एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। सो व्हाट इज दिस एक्सियल ओवरलैप? व्हेन atomic orbitals approach along the line joining centers of two nuclei. When the atomic orbitals approach along the line joining the centers of two nuclei, or when the atomic orbitals approach each other along their internuclear axes, or when atomic orbitals approach along their internuclear axes, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं along their internuclear axes, then that will be called as axial overlap or head on overlap। और sideways overlap क्या होता है? when atomic orbitals overlap in a direction perpendicular to the internuclear axis।
जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, then at that time it will be called as sideways overlap or it will be called as parallel overlap. Means जो orbitals के बीच में वो axes, imaginary axes pass होती हैं, which passes through the orbital, through the middle of the orbital, through the nucleus. जब उस एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप होगा उसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैप, और जब उस एक्सिस के थ्रू ओवरलैप होगा उसको हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, या इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप. नाउ जो ये हेड ऑन ओवरलैप है, इट इज ऑफ three types. This head-on overlap is further classified. It is differentiated. It is divided into three types. Number first type is SS overlap. As the name suggests, SS overlap means overlap between s orbitals. Remember one thing, s orbitals में कोई directional characteristic नहीं होता है. इनमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है. हम कहीं से भी s ऑर्बिटल में एक्सिस डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होगी. दिस इज फॉर एग्जांपल आवर s ऑर्बिटल. हमने यहाँ इस डायरेक्शन में एक्सिस डाल दी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई वैल्यू होगा. हमने इस डायरेक्शन में एक्सिस डाल दी, जितना इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू है, उतना ही यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू है, उतना ही यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू है, उतना ही यहाँ से यहाँ, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू बराबर है. इसके बरक्स अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऑर्बिटल की हम बात करेंगे, दिस अवर px ऑर्बिटल. px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस के इर्द गिर्द है, ये यहां से नहीं होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अगर हम फॉर एग्जांपल वी टॉक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन px ऑर्बिटल, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एक्सिस पे घूम रहा होगा. ये इस एक्सिस पे भी हो सकता है, इस एक्सिस पे भी हो सकता है, बट यहाँ और यहाँ इक्वल प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं है. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं है. मीन्स p ऑर्बिटल सिंपली आप याद रखो, दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक. मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस. इट इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, इट इज नॉट सेम एवरीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन p सब शेल में होगा वो इलेक्ट्रॉन हर जगह पे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद नहीं होता है, वो कहीं कहीं पे मौजूद होता है. वो px एक एक्सिस पे मौजूद हो सकता है, वो py पे मौजूद हो सकता है, वो pz पे मौजूद हो सकता है, बट साइमल्टेनियसली वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हर डायरेक्शन में चक्कर नहीं लगाता है. बट electron present in s orbital, they have no directional characteristic. means s orbitals जब भी अप्रोच करते हैं, कहीं से भी ये अप्रोच करेंगे तो इनका अप्रोच हमेशा होता है हेड ऑन. their approach is always head on. they always do head on overlap. ये हमेशा कौन सा ओवरलैप करते हैं? हेड ऑन ओवरलैप. फॉर एग्जांपल दिस इज अवर s orbital, one orbital, this is another s orbital. फॉर एग्जांपल 1s और 1s, हाइड्रोजन का ये एटम है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, 1s1 1s1. इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इट्स सेंट्रल न्यूक्लियस. इसके पास सेंट्रल न्यूक्लियस है, दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉन. व्हेन दीज टू अप्रोच ईच अदर, द ऑर्बिटल्स दे ओवरलैप. ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. कैसे ओवरलैप करते हैं? दे विल ओवरलैप लाइक दिस. दिस इज फॉर एग्जांपल सेंट्रल न्यूक्लियस, देन वी हैव सेंट्रल न्यूक्लियस ओवर हियर, देन दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. यहाँ पे जो है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी. इट विल बी in between the two nuclei. ये electron density होगी in between the two nuclei. This electron density will be confined in between the two nuclei, and we call this type of overlap as SS overlap. और ये overlap हमेशा कौन सा होता है? It is axial. It is axial. It is always head on. ये atomic orbital यहाँ से आएगा तब भी head on होगा. ये atomic orbital यहाँ से आएगा तब भी head on होगा. ये यहाँ से आएगा तब भी head on होगा. कहीं से भी ये दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, देयर ओवरलैप विल ऑलवेज बी हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ये है इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. यहां से ओवरलैप करेंगे तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होंगे, यहां से ओवरलैप करेंगे तो यहां से भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होंगे, यहां से भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होंगे, यहां से भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होंगे. देयर ओवरलैप विल ऑलवेज बी हेड ऑन ओवरलैप. और हेड ऑन ओवरलैप जो होता है, इट इज एफिशिएंट वे ऑफ ओवरलैप. ये एफिशिएंट वे ऑफ ओवरलैप होता है. इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है, और इस ओवरलैप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इट लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू न्यूक्लियर. और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को साइमल्टेनियसली ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दो न्यूक्लियर के बीच के रिपल्शन को बहुत कम करती है.
क्योंकि ये तो एक दूसरे, अगर ये नेकेड होता मीन्स इन बिटवीन यहाँ पे कोई डेंसिटी नहीं होती तो ये एक दूसरे को रिपेल करते, बट ये बीच में ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, इनके बीच में प्रेजेंट होने की वजह से ये दो न्यूक्लियर के रिपल्शंस कम होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अट्रैक्शंस, एंड दिस ऑर्बिटल, दिस रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वी कॉल इट एज कोवलेंट बॉन्ड। यही होता है कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है? दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वी कॉल एज सिग्मा बॉन्ड। इस वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सो in the overlapping of atomic orbitals, जब atomic orbitals overlap करते हैं, if the atomic orbitals show what type of overlap? Axial overlap. For example, we have SS overlap. It is always axial in nature. Then the covalent bond that will be formed as a result of axial overlap, it will be called as sigma bond. इसको हम बोलते हैं sigma bond, या इसको हम बोल सकते हैं it is sigma orbital. इसको हम ये भी बोल सकते हैं it is sigma orbital. Sigma orbital, and the bond that is formed over here, it is sigma bond. So sigma bond में क्या होता है? इसमें electron density होती है in between the two nuclei, which is held together by both the nuclei simultaneously, leading to the formation of a strong force of attraction between the combining atoms. So एक type axial overlap का क्या है? It is SS overlap. Simultaneously, likewise दूसरा type is axial overlap का है. Second type is of axial overlap is SP overlap. SP overlap. SP overlap means that type of overlap in which an S orbital overlaps with a P orbital. जहां पे एक S orbital P orbital के साथ overlap करता है. But remember one thing, the P orbital, it must be that P orbital with its internuclear axis lying along the internuclear axis of the S orbital. इसकी internuclear axis होनी चाहिए along the internuclear axis of the S orbital. Say for example, this is our S orbital और ये हमारा P orbital है. This is our P orbital. ये इसका centrally located nucleus है. This is the centrally located nucleus of atom, for example A. This is our atom B. ये इसका P orbital है. इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ये इसका S orbital, जैसे ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में जो ओवरलैप होगा, it will be between this S orbital and between this P orbital, which is lying along the internuclear axis. ये वाला P orbital नहीं हो सकता है. अगर ये वाला P orbital होगा तो इसकी एक्सिस ये है, इट इज नॉट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. इसकी एक्सिस हम अगर ऐसे डालेंगे तो इनके दरमियान का जो ओवरलैप होगा, इट विल नॉट बी हेड ऑन ओवरलैप, इट विल बी साइडवेज ओवरलैप. ये यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, यहाँ से ओवरलैप कर सकता है, बट दैट ओवरलैप इज नॉट एफिशिएंट वे ऑफ ओवरलैपिंग. ये मैचिंग सिमेट्री वाला ओवरलैप नहीं होता है. वही मैं बोल रहा था, इट मस्ट बी ऑफ मैचिंग सिमेट्री. मैचिंग सिमेट्री मतलब इट मस्ट लाई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस combining the two atoms. जो internuclear axis है, the orbitals undergoing overlap, they must lie along this internuclear axis. जब ये दो orbitals overlap करेंगे, what will happen? A region of high electron density will be formed between the two nuclei. ये दो एक दूसरे के नजदीक आएंगे. What will happen? This will be our S orbital. Then we have P orbital over here. इसका एक लोब इसके साथ overlap करेगा. This is nucleus. Then we have another lobe over here, and this is the region of overlap. ये होगा region of overlap. This is positively charged nucleus. और जो resulting covalent bond बनेगा, उसकी shape कैसी होगी, वो किस तरह का covalent bond बनेगा? It will be like this. This is positively charged nucleus, then with a small lobe on the back side. Then we have here the region of maximum electron density. और यहाँ पे होगा दूसरा इसका जो है ये atom का nucleus. Then we have a small lobe over here, and this will be the region of highest electron density. और ये region of highest electron density, it will be attracted simultaneously by this nucleus. It will be attracted simultaneously by this nucleus. This will be again what type of bond? It will be again sigma bond, and this type of overlap will be again axial overlap or head-on overlap. So head-on overlap occurs between, अगर for example हम coordinate axis डालेंगे, this is x axis, this is y axis, for example this is z axis, तो s और px के दरमियान जो ओवरलैप होता है, it is what type of overlap? It is sigma overlap or it is axial overlap. इसको हम बोलते हैं sigma overlap भी. It is also called as axial overlap. अगर फॉर एग्जांपल हम नॉमेनक्लेचर चेंज करेंगे, इसको x रखेंगे, इसको y रखेंगे, इसको z रखेंगे, तो शॉर्ट में वही ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप पॉसिबल है विच लाइज अलोंग दिस एक्सिस. जो इस एक्सिस पर ऑर्बिटल होगा, वो z हो, y हो, x हो, कौन सा भी ऑर्बिटल हो, तो जो इस एक्सिस पे होगा
उसके साथ जब भी ओवरलैप होगा इट विल ऑलवेज बी एक्शियल ओवरलैप। वो कौन सा ओवरलैप होगा? इट विल ऑलवेज बी एक्शियल ओवरलैप। थर्ड वन, तीसरा वाला जो ओवरलैप पॉसिबल है एक्शियल ओवरलैप, इट इज पीपी ओवरलैप। थर्ड वन इज पीपी ओवरलैप। पीपी ओवरलैप, थर्ड एक्शियल ओवरलैप दैट इज पॉसिबल, इट इज पीपी ओवरलैप। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ओवरलैपिंग दो किस्म की है, एक है एक्शियल ओवरलैप, दूसरा है साइडवेज ओवरलैप। एक्शियल ओवरलैप मींस व्हेन द combining atoms they join together, the orbitals overlap along the internuclear axis, along the axis which is joining the centers of the two nuclei, that we call as axial overlap. और sideways और parallel overlap वो होता है when the combining atoms approach each other perpendicular to the direction that is joining the centers of the two nuclei. जब center that is joining the centers of the two nuclei, जब उसकी perpendicular direction में approach करेंगे two nuclei, then that type of overlap we call as that sideways or that we call as parallel overlap. इसी तरह से PP overlap, PP overlap में भी वही orbitals होते हैं which can approach each other along the internuclear axis. जैसे for example ये एक orbital है, ये दूसरा orbital है. This is positively charged center of atom A, this is positively charged center of atom B. And these are the orbitals in which we have unpaired electron. यहाँ पे unpaired electron, यहाँ पे unpaired electron. अब ये atomic orbitals को नजदीक आना, ये atoms को overlap करना है. What will happen? It will result in the formation of the overlap will take place like this. This is one lobe, then we have another lobe over here. Then यहाँ पे आ जाएगा दूसरा lobe. यहाँ पे हमारा B atom है. Then we have this is our positively charged nucleus of B atom. This is our A atom, and this is the region of overlap. ये होगा region of overlap, and they have overlapped along the internuclear axis. They have overlapped along the internuclear axis. So what type of overlap? It will be sigma overlap. It will be sigma overlap or it will be axial overlap. और sigma overlap से क्या होगा? This is positively charged nucleus. This is one lobe. Then we have a region of maximum electron density. This is another positively charged nucleus. This is atom B. This is atom A, and this will be the electron density that will be holding these two nuclei together with each other. और इस electron density की वजह से ये molecule stable बनेगा. This will be a sigma bond. ये कौन सा bond होगा? Sigma bond. और कौन सा वाला sigma bond? Which will be formed by the overlap of two pure p orbitals. दो pure p atomic orbitals overlap करके क्या बनाते हैं? A B type molecule जिनमें एक covalent bond present है, and that is sigma bond. ये कौन सा bond है? Sigma bond. These are the three possibilities of formation of sigma bond. तीन possibilities के through sigma bond बन सकता है. One possibility, अगर s orbital एक atom का होगा, दूसरे atom का p होगा, but वो वाला p which is lying along the internuclear axis, along the line joining the centers of the two atoms, then that will be sp overlap. दूसरी possibility then that will be sp overlap. दूसरी possibility ss overlap, जहाँ पे एक भी s होगा दूसरा भी s होगा, वहां पे किसी भी डायरेक्शन में आ जाएंगे दो orbitals, they will always lead to the formation of sigma bond. Means ss हमेशा sigma bond बनाता है. sp बना सकता है sigma bond only when the p orbital approaches to s orbital along the internuclear axis. और pp बना सकता है तभी sigma bond जब दो p orbitals approach करेंगे each other along the line joining the nuclei of the two combining atoms. इस line के through जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब ही ये कर सकते हैं sigma overlap, तब ही ये बना सकते हैं sigma bond. These are the three types of what type of overlap? Axial overlap or what we call as head-on overlap. Then we can simply represent them over here. यहाँ पे हम इनको दिखा सकते हैं. One is SS overlap. SS overlap. SS overlap में क्या बनता है? This is positively charged nucleus of one atom. This is positively charged nucleus of other atom. Then we have an electron density in between. इनके बीच में यहाँ पे होती है electron density, and this electron density is responsible for holding these two atoms together with each other. ये electron density की वजह से ये दो atoms, ये दो nuclei जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. जो हमने वहां पे overlapping में तीसरा point पढ़ा था, that electron density gets arranged in such a way. ये electron density इस तरह से arrange होती है
after the formation of covalent bond, that this electron density is simultaneously attracted by both the nuclei. ये electron density को simultaneously एक ही साथ में दोनों nuclei attract करते हैं. Repulsions are minimized and attractions are maximized. So SS overlap, it is sigma type bond. Then we have sp overlap. sp वाले overlap में क्या होता है? This is s orbital of one atom, then we have p orbital of other atom, वो भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, फिर छोटा सा लोब जैसे p ऑर्बिटल में होता है, और यहाँ पे हमारी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज होल्डिंग द s and p orbitals together. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से this region of high electron density, it holds these two nuclei together. Then we have third type, it is pp overlap, जहाँ पे एक small lobe, then we have positively charged nucleus, then we have this region of high electron density, positively charged nucleus and a small lobe. The electron density resides most of the times it resides here. ये electron density maximum times पे यहाँ रहती है in between the two nuclei, leading to the stability. It will be sigma type, this will be sigma type, और ये भी होगा sigma type. Then another possibility is sideways overlap. Sideways overlap को हमने कैसे define किया? It is overlap perpendicular to the, when atomic orbitals overlap in a direction perpendicular to the direction of the internuclear axis. ये हमारी internuclear axis है. This is positively charged nucleus of one atom, this is positively charged nucleus of another atom. Yeah, this is one atom A, this is another atom B. This is their internuclear axis. ये इनकी internuclear axis है. अब इन atoms पर for example यहाँ पे एक orbital है और इस एटम पर यहाँ पे एक ऑर्बिटल है. बॉन्ड बनाने के लिए इन दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, तो ये ऑर्बिटल्स इस वाली डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे एक दूसरे को. They will approach in this direction with respect to each other. Means they are approaching each other perpendicular to this axis. इस एक्सिस के perpendicular एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है, it is called as pi bond. So when the atomic orbitals approach each other along the line joining the centers of the two atoms, means axial overlap or head-on overlap, the bond formed is called as sigma bond. When the atomic orbitals approach each other perpendicular to the direction joining the centers of two combining atoms, then that type of overlap is called pi overlap or sideways overlap or parallel overlap, and the bond that will be formed here will be called as pi bond. इस वाले bond को हम क्या कहेंगे? pi bond. और overlap करने के लिए better overlap, वहां पे overlap कैसा था? This was one lobe, this was another lobe. ये अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे. Therefore sigma bond is quite strong bond. यहाँ पे ओवरलैप की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इनको साइड से एक दूसरे के साथ जुड़ना है और उसके लिए इनको नजदीक आना है. नजदीक आने में परेशानी ये है कि ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. सो दीज टू दे विल ट्राई टू रिपेल ईच अदर, और ये इन दो ऑर्बिटल्स को नजदीक नहीं आने देंगे. तो इन ऑर्बिटल्स को क्या काम करना पड़ता है? दे हैव टू बेंड अ बिट, इनको थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है टू ओवरलैप. और बेंड करने के बाद भी ये वाला ओवरलैप जो है ये सक्सेसफुल ओवरलैप नहीं होता है, स्ट्रॉन्गर ओवरलैप नहीं होता है. जहां तक ये इनकी बात करेंगे तो ये वाले ओवरलैप्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग ओवरलैप्स होते हैं. दिस इज व्हाई सिग्मा बॉन्ड्स आर ऑफ मच हायर स्ट्रेंथ compared to pi bonds. Sigma bond can exist independently. Pi bond cannot exist without a sigma bond. Pi bond जिंदा नहीं रह सकता है सिग्मा के बगैर, सिग्मा पाई के बगैर जिंदा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, इनको ओवरलैप करना है along the perpendicular to the axis which is joining the centers. तो इसके लिए इनको क्या करना है? This positively charged nucleus of one atom, then इस ऑर्बिटल को थोड़ा सा बेंड होना है, दूसरे ऑर्बिटल को भी थोड़ा सा बेंड होना है. दूसरा न्यूक्लियस हमारे पास ये है, इस ऑर्बिटल को थोड़ा सा बेंड होना है, दूसरे ऑर्बिटल को भी थोड़ा सा बेंड होना है ओवरलैप करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस को नजदीक नहीं आ सकते हैं. अब ऑर्बिटल्स को ही बेंड होना है, तो ओवरलैप, रीजन ऑफ ओवरलैप बहुत कम होता है. द रीजन ऑफ ओवरलैप इज वेरी लेस. और ये वाला ओवरलैप जो है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिमेन इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी. क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नो होगी? द आंसर इज नो. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी. सो इन बिटवीन द टू न्यूक्लियई अलोंग दिस एक्सिस देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग दिस एक्सिस, electron density is along this axis. We show it like this. This is positively charged nucleus of one atom, this is positively charged nucleus of another atom. We have an electron density, a region of high electron density along this axis. यहाँ से electron density है,
देन वी हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग दिस एक्सिस, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट वी हैव अ रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन, यहां से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। फ्रॉम हियर टू हियर वी हैव नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मींस अगर हम इसको प्लेन में कंसिडर करेंगे तो इस मॉलिक्यूल में इस प्लेन, जो ये प्लेन, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जो ये बीच का पोर्शन है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद नहीं है, ये वाली पोर्शन में जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद नहीं है, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन, दिस कॉल्ड एज नोडल प्लेन, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन होता क्या है, इट इज रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो वाला रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी। तो पाई ओवरलैप में प्रॉब्लम क्या है, पाई ओवरलैप में एटॉमिक ऑर्बिटल उसको बेंड होना है टू डू द ओवरलैप, बेंड होने के बाद भी इनका ओवरलैप बेटर ओवरलैप कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर एक दूसरे को फेस करते हैं, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर नेकेड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर फेसिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जिसकी वजह से दे विल डेवलप रिपल्सिव फोर्सेस, रिपल्सिव टेंडेंसीज बिटवीन देम, और उसकी वजह से ये ओवरलैप बेटर ओवरलैप नहीं रह जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पाई ओवरलैप इज ऑलवेज ऑफ लेसर एक्सटेंट, लेस स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू द सिग्मा ओवरलैप। सो पाई बॉन्ड्स जो भी बनते हैं, पाई बॉन्ड्स they are formed out of the parallel overlap, and pi bonds are always less stronger compared to the sigma bonds. इसको हम अब थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे, what does this all mean? पहले आपको ये याद रखना है that in the overlap of atomic orbitals two possibilities arise. One is the atomic orbitals may approach each other along the line joining the centers of the two atoms. Then the overlap that will result from there, it will be called as sigma overlap. उस वाले overlap को हम बोलते हैं sigma overlap. और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, अप्रोच करेंगे एक दूसरे को along the line which is perpendicular to the line joining the centers of the two combining atoms. Then उस वाले ओवरलैप को हम क्या बोलते हैं, that we call as sideways overlap, or that we call as parallel overlap. Parallel overlap or sideways overlap, it always result us in the formation of a pi bond. वहां पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और किस किस के दरमियान पॉसिबिलिटी है पाई ओवरलैप की, पाई ओवरलैप की पॉसिबिलिटी है सिर्फ p और p ऑर्बिटल्स के दरमियान। when p and p orbitals approach each other, they lead to the formation of pi bond. और कौन से वाले p orbitals, which are present perpendicular to the internuclear axis. This is internuclear axis. इस internuclear axis के perpendicular जो orbitals हैं, for example p सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। दिस ऑर्बिटल इज प्रेजेंट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस ऑर्बिटल, क्योंकि ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इट इज प्रेजेंट अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर यहाँ पे दूसरा एटम प्रेजेंट है तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है विच इज जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू एटम्स। जो ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और जो ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस विच इज जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम्स। ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये वाली एक्सिस जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती हैं, ये वाला ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर है। दूसरा ऑर्बिटल अगर हम फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में दिखाएंगे और यहाँ से भी इस डायरेक्शन में दिखाएंगे तो ये वाला ऑर्बिटल भी परपेंडिकुलर होगा। सिर्फ ये वाला जो ऑर्बिटल है, इट इज प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, सिर्फ यही वाला ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस है, और ये वाला ऑर्बिटल हमेशा बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। This orbital will form sigma bond. This orbital and this orbital, they will overlap to form pi bond. ये दो ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये दो ऑर्बिटल्स भी हमेशा क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड, दे विल आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड। हम यहाँ पे डायरेक्टली एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल वी टेक इनटू कंसीडरेशन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखो N2 बनता है दो नाइट्रोजन एटम्स से, वन नाइट्रोजन एटम अनदर नाइट्रोजन एटम, और हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज 7, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3, इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2
2p3। 2p3 का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इट इज 2px1, 2py1, 2pz1। देन इसका भी बिल्कुल यही कॉन्फ़िगरेशन होगा 2p सबशेल का। Means 2p subshell is like this. We have 3 orbitals. We can show them by square brackets 1, 2 and 3 electrons over here. इनको हम in terms of orbital representation भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? This is for example our z axis, this is our x axis and this one is for example our y axis. ये है y axis. This is x axis, this is y axis, this is z axis, y and x. Then हम क्या बताते हैं? This is px orbital, this is py orbital, this is pz orbital. This one is px orbital. ये वाला orbital, it is px orbital. Then we have here py orbital. और यहाँ पे for example हमारा है no, not in this direction, it is along this direction. यहाँ पे हमारा है pz orbital. This is pz orbital. ये orbital में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? It contains 1 electron. ये ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और ये ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ हमारे पास दूसरा एटम है सराउंडिंग नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन, इसमें भी एक ऑर्बिटल है लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, दूसरा ऑर्बिटल है इन दिस डायरेक्शन और तीसरा ऑर्बिटल है अलोंग द वाई एक्सिस। इसमें भी 3 एक्सिस होंगी। दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ये हमारी जेड एक्सिस है। देन दिस x axis, y axis and z axis orbital they will be carrying 1 electron. इनके पास भी होगा एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ओवरलैप होगा। now we are bringing them close to each other. ये और ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। this type of overlap will be what type? head on overlap, because they are approaching each other, these two orbitals along the internuclear axis. head on overlap होगा। the bond that will be formed here will be sigma bond. यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन गया एक बॉन्ड। बट अभी भी इस नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, मींस एक कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया। और कौन सा वाला कोवलेंट बॉन्ड? यहाँ पे हम दिखाते हैं, इट इज एन सिंगल बॉन्ड एन। और ये वाला बॉन्ड क्या है? इट इज सिग्मा टाइप, इट इज सिग्मा टाइप। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इन ऑर्बिटल्स को भी ओवरलैप करना है। तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे? ये वाला ऑर्बिटल अपनी मैचिंग सिमेट्री के साथ ओवरलैप करेगा। इसकी मैचिंग सिमेट्री यहाँ पे है, दिस इज पी वाई ऑर्बिटल। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, इट इज ऑल्सो पी वाई ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इट इज ऑल्सो पी वाई ऑर्बिटल, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मसाफत इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ज्यादा है, therefore extent of overlap will be low and this is also parallel overlap, therefore it will be a pi bond. कौन सा बॉन्ड बनेगा? pi bond. So दूसरा बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन में, it is pi bond. इसी तरह से ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल भी ओवरलैप करेंगे, दिस एंड दिस विल ओवरलैप। बट कैसे ओवरलैप करेंगे? साइडवेज, यहाँ से ओवरलैप करेंगे, साइडवेज ओवरलैप। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, साइडवेज ओवरलैप, नो हेड ऑन ओवरलैप इज पॉसिबल। तो यहाँ से और एक पाई बॉन्ड बनेगा। सो थर्ड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। जब हम देखते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड्स हैं, आउट ऑफ विच वन इज सिग्मा बॉन्ड, और ये जो 2 बॉन्ड्स हैं दे आर पाई बॉन्ड्स, दे आर पाई बॉन्ड्स। रिमेंबर वन थिंग, बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं? 1 बन सकता है, 2 बन सकते हैं और 3 बन सकते हैं एटम्स के बीच में। जब 1 बनेगा तो ये हमेशा होता है सिग्मा, जब 2 बनेंगे तो 1 होता है सिग्मा, 1 होता है पाई, जब 3 बनेंगे तो 1 होता है सिग्मा और 2 डेफिनेटली पाई होने चाहिए। 2 bonds are pi bonds which are formed by sideways overlap, 1 is sigma, as is the case of nitrogen। 2 bonds कहाँ पे बनते हैं? जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के केस में 1 बनेगा यहाँ से थ्रू हेड ऑन ओवरलैप, दूसरा बनेगा यहाँ से थ्रू साइडवेज ओवरलैप। सो साइडवेज ओवरलैप ऑलवेज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ pi bond and head on overlap always leads to the formation of a sigma bond। So sigma और pi में difference क्या है? Sigma is a better overlap resulting in the formation of strong bonds, head-on overlap, while the atomic orbitals approach each other along the internuclear axis. They lead to the attraction between the two combining nuclei, between the two combining atoms। ये 2 combining atoms के बीच में attraction जो है पैदा करती है। This is all about the orbital overlaps। Then one last thing जो आपको याद रखना है, SS overlaps जो होते हैं they are comparatively of less strength, of
लेसर टेंडेंसी उनकी होती है ऑफ फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स कंपेयर टू एसपी और ओवरलैप्स कंपेयर टू पीपी ओवरलैप्स। आप ये याद रखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप का ऑर्डर क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, पीपी ओवरलैप जो होता है इट इज ऑफ हाईएस्ट एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट सबसे ज्यादा होता है। मींस पीपी ऑर्बिटल्स, जब पी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप उनके दरमियान सबसे ज्यादा होता है। और इससे कम किसका ओवरलैप होता है अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। मींस एक एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, और इससे कम किसका होता है अगर एस और एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। रीजन इसके लिए क्या है, रीजन इसके लिए यही है दैट पी ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। मींस पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अलोंग ओनली वन डायरेक्शन, और एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हर डायरेक्शन में बराबर होती है। देयरफॉर पी ऑर्बिटल्स में extent of overlap जो होता है it is comparatively lesser than the extent of overlap in the p orbitals. For example we have p orbital over here, यहाँ से और एक p orbital आ जाता है, say for example this another p orbital, तो यहाँ पे extent of overlap ज्यादा होता है because these p orbitals they have directional characteristic. Electron density is only along this axis, electron density सिर्फ इसी axis पे है, therefore better overlap. s orbitals में क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सेम अलोंग ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम होती है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कभी यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और कभी यहाँ भी हो सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे ओवरलैप जो होता है इट इज कंपैरेटिवली लेसर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप यहाँ पे ओवरलैप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है। और जब एस और एस होता है, प्योर एस और प्योर एस, यहाँ पे ओवरलैप जो होता है इट इज लीस्ट, यहाँ पे ओवरलैप जो होता है इट इज लीस्ट। सो हाईएस्ट bonds of highest strength are formed by pp overlap, bonds are comparatively less strength are formed by ss overlap, और sp overlap और ss overlap से bonds of least strength बन जाते हैं। these all are for sigma bonds। किन के लिए, सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। सिग्मा बॉन्ड्स में pp ओवरलैप के थ्रू सबसे स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp ओवरलैप के थ्रू उससे थोड़ा कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनता है, और ss ओवरलैप के थ्रू लीस्ट स्ट्रेंथ वाला सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और रीजन इसके लिए आप क्या याद रखेंगे, रीजन फॉर दिस इज डायरेक्शनल नेचर ऑफ p ऑर्बिटल्स, डायरेक्शनल नेचर ऑफ p ऑर्बिटल्स। जो p ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन electron density lies along a particular direction, therefore p orbitals they do better overlap। इनको हम बोलते हैं they are directionally concentrated orbitals। p orbitals are directionally concentrated, means electron density concentrate होती है along a particular axis। electron density यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, electron density इसी axis पे है, यहाँ पे है। और इस कंसंट्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं दे इंटरमिक्स ओवरलैप विद ईच अदर क्वाइट फर्मली, क्वाइट स्ट्रांगली कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ये फैली हुई होती है, हर डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, ये फैली हुई होती है हर डायरेक्शन में। देयरफॉर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लेस कंपेयर टू पीपी ओवरलैप और कंपेयर टू एसपी ओवरलैप। देन और एक चीज आप इसमें याद रखेंगे, जिन ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस कम होगी वो ऑर्बिटल्स बेटर ओवरलैप करते हैं। जो हमने वहां पे लिखी थी कंडीशंस दो, एक थी मैचिंग सिमेट्री, दूसरी कंडीशन जो वहां पे हमने लिखी थी इट वाज कंपरेबल एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपरेबल होती है वो ऑर्बिटल्स बेटर ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 1s एंड 1s ऑर्बिटल, और दूसरी जानिब हमारे पास है 1s और 3s ऑर्बिटल। 1s और 1s ऑर्बिटल अच्छा ओवरलैप करेंगे, बेटर ओवरलैप करेंगे कंपेयर टू 1s एंड 3s ऑर्बिटल, क्योंकि इसका क्वांटम नंबर 1 है, इसका क्वांटम नंबर 3 है। मींस एनर्जी डिफरेंस, साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा इन दो के दरमियान। सो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप विल बी कंपैरेटिवली लेसर देन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ओवर हियर।
सो जिन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री भी मैच करती है और जिनमें एनर्जी डिफरेंस भी कम होती है, दे हैव कंपेरेबल एनर्जी, वो ऑर्बिटल्स बेटर ओवरलैप करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल